السلام علیکم میرے سبھی لسنرز۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جہاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ شاہد، اور یہ اس کی 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف ایک ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی فضا کو سنبھالے کھڑی تھی۔ رئیسہ اور فاطمہ بیڈ پر ٹیک لگا کر آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فاطمہ کا فون بج اٹھا۔ خاموشی میں فون کی بیل نے کمرے کی فضا چیر دی۔ رئیسہ نے فوراً اسکرین کی طرف جھانکا۔ شیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اٹھا لو، شرما کیوں رہی ہو؟ فاطمہ نے اسے کوہنی مارتے ہوئے آنکھیں نکالی۔ بدتمیز، بعد میں بتاؤں گی تمہیں، پہلے بات تو کرنے دو۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، فاطمہ نے آہستہ سے کہا۔ کھڑکی کھولو، باہر کھڑا ہوں۔ دوسری جانب موسیٰ کی خشک اور سرد آواز سنائی دی اور فون بند ہو گیا۔ موسیٰ یہاں آیا ہے؟ رئیسہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں کھڑکی کھول کر آتی ہوں۔ فاطمہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، چپل پہنی اور کھڑکی کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی، موسیٰ نے ایک جست میں اندر چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی بند کر کے فاطمہ کو بازو سے دبوچ کر دیوار سے لگا گیا۔ موسیٰ، یہ کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ کو اس کی انگلیوں کا دباؤ اپنی جلد میں محسوس ہوا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، تم کیا کر رہی ہو؟ موسیٰ کی آنکھیں انگارہ برساتی ہوئی اس کے چہرے کے قریب تھی۔ اوہ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ رئیسہ بوکھلا گئی، جو اب تک بیڈ پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تم بیچ میں مت بولو، دور رہو۔ موسیٰ کی آواز میں غصہ تو تھا، مگر اس میں ٹھنڈک بھی تھی، جیسے وہ اپنے اندر ایک طوفان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فاطمہ نے موسیٰ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جانتی تھی یہ غصہ کسی چھوٹی بات کا نہیں ہے۔ میں جو پوچھوں سچ سچ جواب دینا۔ اگر ایک بھی جھوٹ بولا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ موسیٰ کی سانس فاطمہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ فردان روما کو کہاں لے گیا ہے؟ سچ چاہیے مجھے، صرف سچ۔ موسیٰ کی آنکھوں میں اضطراب جھلک رہا تھا۔ روما؟ کون؟ اور فردان تو دوستوں کے ساتھ گیا ہے۔ فاطمہ نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ موسیٰ نے اس کے گال پر سے بال ہٹاتے ہوئے نرمی اختیار کی۔ فاطمہ، مجھے پتہ ہے فردان نے سب کچھ تمہیں بتایا ہے۔ میں غصے میں ہوں، مگر تم سے نہیں۔ مجھے بتا دو وہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، سچ کہہ رہی ہوں، یقین کرے۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رئیسہ تب کر بولی۔ تم دونوں مجھے کچھ بتاؤ گی کہ چل کیا رہا ہے یہاں؟ موسیٰ نے گہری سانس لی، بیڈ پر بیٹھ گیا۔ روما فردان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ دونوں نے نکاح کر لیا ہے، اور تایا جان، وہ تو قسم کھا چکے ہیں خون بہانے کی۔ رئیسہ سکتے میں تھی۔ فاطمہ نے بھی ایسا ظاہر کیا جیسے وہ کچھ نہیں جانتی۔ صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ موسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر فرش پر نظریں گاڑ دی۔ فاطمہ نے نرمی سے پوچھا، آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں یار، وہ بے بس لہجے میں بولتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ بازو میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ پریشان تھے، اٹس اوکے۔ فاطمہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی ادھر ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ رئیسہ نے تنگ آ کر کہا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میاں بیوی بیٹھے ہیں؟ تمہیں تو اب تک یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، موسیٰ نے چڑھ کر کہا۔ بہت ہی بے شرم ہو تم، رئیسہ نے بیڈ پر تکیہ مارتے ہوئے کہا۔ موسیٰ، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے آتی ہوں۔ فاطمہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ موسیٰ نے موبائل جیب سے نکالا، ڈریسنگ پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ بھی واش روم میں تھا جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ رئیسہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ موبائل اسکرین پر تایا جان لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اس نے ذرا جھجک کے ساتھ کال ریسیو کی۔ موسیٰ، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ روما کو فردان کے ساتھ کس نے بھگایا ہے؟ اب بس فاطمہ سے پوچھو وہ کہاں گئے ہیں۔ اگر نہیں بتایا تو یاد رکھو اس کے باپ کو تم نے مارا تھا۔ باقی کے خاندان کو میں خود قبر میں اتاروں گا۔ یہ الفاظ رئیسہ کے وجود کو چیرتے چلے گئے۔ ہاتھ لرزنے لگے، سانس سینے میں اٹک گئی اور موبائل اسے سنبھالے نہ سنبھلا زور سے فرش پر جا گرا۔
उसी लम्हे वॉशरूम से निकलते मूसा ने देखा। तुमने मेरा फ़ोन नीचे क्यों फेंका है? उसकी आवाज़ में उलझन थी। रईसा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पलट कर देखा, नज़रें मूसा से जा टकराई। एक लम्हे में चीख निकली, तुमने फातिमा के बाप को मारा है? मूसा जैसे साकित हो गया, पलकें झपकना भूल गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों ऐसा करूँगा? उसने फ़ौरन इनकार किया। ताया जान ने खुद कहा है, मत घुमाओ बात, मुझे सच बताओ। रईसा उसका गिरबान पकड़ चुकी थी, आंखों में आग थी और चेहरे पर बेयकीनी। मूसा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो बस गलती से हुआ है, मेरा इरादा नहीं था। अल्फाज हलक में फंस गए। गलती? तुमने उस लड़की की सारी दुनिया छीन ली मूसा। वो रोज़ रोती है, पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद करती है कि उसके बाप का केस शुरू किया जाए, और तुम कहते हो गलती थी। रईसा की आंखों में आंसू भर आए, दिल तड़प उठा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो, या ये भी एक खेल है? वो गुस्से से चिल्लाई। मूसा ने गहरा सांस लिया। पहले वो दुश्मन थी, लेकिन जब उसके आंसू और दुआएं देखी तब एहसास हुआ, अब मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। रईसा, तुम्हें लगता है वो अपने बाप के कातिल के साथ रहेगी? उसी लम्हे कमरे में दाखिल होती फातिमा ने रईसा का आखिरी जुमला सुन लिया। सालन से भरी ट्रे फातिमा के हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। रईसा का दिल धक से रह गया। क्या कहा तुमने? कौन है मेरे बाबा का कातिल? किसके साथ नहीं रह सकती मैं? फातिमा की आवाज़ में कपकपाहट थी, आंखों में सदमा। मूसा फौरन बोला, नहीं नहीं, वो बस शहसवार की बात हो रही थी। तुमने अपना हाथ देखो कितना जल गया है। वो फौरन उसके करीब आया, उसके हाथ पर नज़र डाली। रईसा खामोशी से सब देख रही थी। मूसा की आंखों का इशारा समझ गई। खामोश रहो, तुम दोनों बैठो, मैं खाना ले आती हूँ। रईसा आहिस्ता से बोली, ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गई, दिल पर पत्थर रखकर। फातिमा मूसा के करीब आई, उसके गले लग गई। मूसा, रईसा कुछ कह रही थी, सच बताए मेरे बाबा के कातिल के बारे में। मैं किसके साथ नहीं रह सकती? मूसा ने बमुश्किल उसकी तरफ नज़रें उठाई। दिल चाह रहा था सब कह दे, लेकिन होठ कँपा रहे थे। कुछ नहीं हनी भी, वो बस शहसवार की बात कर रही थी। तुम बैठो, मुझे अपना हाथ दिखाओ कितना जल गया है। उसने नरमी से उसके हाथ पर फूंक मारी। आंखों में पछतावा था, दिल में खौफ, और कमरे की फिजा में खंजर जैसी खामोशी फैल चुकी थी। रात की तारीकी में आसमान सिया मखमल की चादर पर बिखरे सितारों की पानी जगमगा रहा था। हवाओं में नीम गर्मी और पुरानी लकड़ी की महक घुली हुई थी। सहन के बीचों बीच दो पुरानी चारपाइयाँ बिछी थी, जिन पर फरदान और रोमा लेटे खामोशी से आसमान को देख रहे थे, मगर नींद उन दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। तुम सो क्यों नहीं रही? फरदान ने एक नज़र आसमान पर डाली, जैसे वो खुद भी जवाब की तलाश में हो। रोमा ने लंबी सांस ली। मैं तो पिछले 3 दिन से नहीं सोई। कभी मौत की दहलीज पर नींद ठहरने नहीं देती, और कभी आपकी फ़िक्र कि कहीं आप पकड़े ना जाए, और आज आज ये डर कि कहीं हम दोनों न पकड़े जाएं। फरदान ने उसकी बात सुनी, मगर उसके लफ्ज़ों में छुपी बेबसी को छुआ तक नहीं। वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, आसमान देखो कितना हसीन है। रोमा ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, आसमान तो हसीन है, पर किस्मत नहीं। फिर वो आहिस्तगी से करवट बदलकर उसका हाथ थाम गई, जैसे उस लम्स में सुकून ढूंढ रही हो। किस्मत बनाने वाले तो हसीन है, बस उस पर यकीन रखो, मेरी नई नई बीवी। फरदान ने मोहब्बत से उसकी उंगलियां थाम लीं, जिन पर चोटों के निशान अभी भी नुमायां थे। उसकी नर्म उंगलियां उन जख्मों पर यूं चली जैसे मरहम रख रही हों। रोमा की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। आपने अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं? फरदान ने निगाहें चुराई। फातिमा को बता दिया था, मुझे यकीन है उसने सब कुछ संभाल लिया होगा। फातिमा? रोमा के माथे पर बल पड़ गए। कौन फातिमा? इब्राहिम चाचू की बेटी, वही जिसके बाबा का मर्डर हुआ था। रोमा जैसे एकदम साकित हो गई। एक मिनट, आप फातिमा इब्राहिम के कज़न हैं, वो जो एंकर है? हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? फरदान को उसका अंदाज़ अजीब लगा। रोमा फ़ौरन चारपाई से उठकर बैठ गई। जिसके बाबा का मर्डर हुआ था, आप सच में उसके कज़न हैं? रोमा, अब मैं ये बात कहाँ लिख कर दूँ? फरदान ने उलझकर जवाब दिया। फिर आपने उसके बाबा के कातिल के खिलाफ केस क्यों नहीं किया?
रोमा अब उसके बिल्कुल करीब आ बैठी। फरदान ने एक सर्द सांस भरी। हमें शहसवार पर शक था और फातिमा को भी, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। रोमा की आंखों में तल्खी उभर आई। क्योंकि कातिल शहसवार नहीं था, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। फरदान का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उसकी आवाज़ जैसे खो गई हो। रोमा ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। मूसा ने कत्ल किया है फातिमा के बाबा का। मैंने खुद सुना है अपने कानों से। एक लम्हे के लिए जैसे पूरी फिजा जम सी गई। तारों भरा आसमान, ठंडी हवा, सब मान पड़ गए। तुम सच कह रही हो? वो कैसे कर सकता है? पहले फातिमा से निकाह और फिर कत्ल। फरदान की आवाज़ थरथराई। वो कुछ भी कर सकता है। रोमा की आवाज़ में थकन, खौफ और सच्चाई का जहर मिला हुआ था। आपको फातिमा को बताना होगा ताकि वो उससे बच सके। रोमा ये कहकर उठ गई। फजर की अज़ानें दूर कहीं मस्जिदों से गूंजने लगी। फरदान साकित बैठा रहा, जैसे पत्थर का हो गया हो। सितारे आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ने लगे और उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ फातिमा का चेहरा था। उसे कैसे बताए कि उसकी ज़िंदगी का सबसे करीबी इंसान उसके बाप का कातिल है। सूरज पूरी आबोताब के साथ आसमान पर दहक रहा था, जैसे उसकी तपिश ज़मीन की सच्चाइयों को नंगा कर देना चाहती हो। हवेली के आंगन में खामोशी थी, मगर फिजा में एक अनजानी बेचैनी फैली हुई थी। 2 दिन बाद इलेक्शन थे, मगर हवेली में सियासत की जगह सिर्फ गुमशुदगी का शोर था। फरदान और रोमा लापता थे और उनका नाम मिलना मूसा के लिए सिर्फ एक ज़ाती नुकसान नहीं, एक सियासी खतरा भी बन चुका था। तभी हवेली के बाहरी गेट पर मूसा की गाड़ी धूल उड़ाती दाखिल हुई। गाड़ी के दरवाजे जैसे ही खुले, मूसा थके कदमों से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मायूसी, आंखों में जलन और माथे पर पसीने की तह थी। ड्राइंग रूम में बैठे याया साहब ने उसे देखा तो बेकरार होकर फौरन उठ खड़े हुए। मूसा, रोमा मिली? कोई खबर? मूसा ने गर्दन झुकाए भारी कदमों से अंदर आते हुए जवाब दिया, नहीं। पूरी लाहौर छान मारा, हर कोना, हर गली, हर होटल देख लिया, मगर जैसे ज़मीन निगल गई हो। उसके लहजे में एक थकन थी, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इज्जत के रेजा रेजा हो जाने की। किस बिल में छुपे हैं और उन्हें भगाया किसने? मरहा और इस्माइल। याह्या साहब के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी उभर आई। मैंने खुद देखा है उन दोनों को, एक साथ, बार बार। आपकी दूसरी बेटी भी मुंह पर कालक मलने को तैयार है। इश्क ने उनके खून में जहर घोल दिया है। ये कहकर मूसा ने गुस्से से टेबल पर मुक्का दे मारा। क्रिस्टल के गिलास थरथरा उठे। याह्या साहब का जबड़ा भीज गया। उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझने लगी, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हों। इस्माइल को एक बार हवेली आने दो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। उनकी आवाज़ में ऐसी सर्द खूनी वहशत थी कि दीवारों तक को चुप लग गई। मूसा तंजिया हंसा। पहले अपनी बेटियों के टुकड़े करें, जिनके रगों में खून की जगह इश्क दौड़ रहा है। मूसा के लफ्ज़ों ने गोया बारूद का काम किया। ये कहते ही वो पलटा और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की छाप जैसे हवेली की बुनियाद में हलचल मचा रही थी। पीछे सिर्फ याह्या साहब खड़े थे, नहायत ताकतवर, मगर उस लम्हे बेबस। दोपहर का 1 बज चुका था। सूरज खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। ड्राइंग रूम में हल्की सी धूप फर्श पर बिखरी हुई थी। कमरे में मौजूद सभी लोग खामोशी से बैठे थे, मगर खामोशी सिर्फ लबों पर थी, दिलों में कोहराम बरपा था। सियाम की नज़रें बार बार रईसा पर जा ठहरती। उसके दिल में पछतावे की धुन गहरी हो चुकी थी। वो जानता था उसने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। रईसा की खामोशी आज उसे किसी अदालत के फैसले की तरह काट रही थी। हफ्सा बेगम ने आहिस्तगी से बात छेड़ी। उनका लहजा माँ के साए जैसा नर्म और मेहरबान था। रईसा, मैंने श्याम को बहुत समझाया है, अब वो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम वापस हमारे साथ घर चलो। रईसा की शख्सियत उस लम्हे मुकम्मल खामोशी का मुजस्मा बनी हुई थी। हल्के पर्पल रंग के लिबास में वो जैसे किसी धुन में लिपटी हुई थी। उसके बालों का रफ जूड़ा, निकलती हुई 2 लटें, बिखरे बिखरे से तासुरात, आंखों का साकित काजल और लबों पर हल्का पिंक ग्लोज। वो सादा से हुलिये में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। श्याम बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है, मगर अगर यूं छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे तो कल को क्या होगा
तुम दोनों अब एक नई जिंदगी के दहाने पर हो। एक दूसरे को सहारा दो, न कि एक दूसरे को तोड़ो। अलिशबा बेगम के लहजे में नरमी थी। श्याम ने नजरें झुका ली। शर्मिंदगी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। जी चाची, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। इतने में खामोश बैठी अम्मा भी तड़प कर बोली, अरे लड़की, अगर उसने कुछ कह भी दिया था तो सब्र कर लेती। घर छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी। रईसा ने अब पहली बार नज़र उठाकर श्याम को देखा। उसकी आंखों में शिकवा नहीं, सवाल था। मैं तो नहीं गई थी, तुमने निकाला था, ये सबको क्यों नहीं बताते। श्याम ने वो सवाल पढ़ लिया। उसकी पलकें लरज़ी। अम्मा भी, उसकी कोई गलती नहीं, कसूर मेरा था। आप उसे कुछ न कहे। वो नरमी से अम्मा भी के कंधे पर सर रखते हुए बोला। नजरें अब भी रईसा के चेहरे से जुड़ी थी। हट जोरू का गुलाम। अम्मा भी ने हंसते हुए उसके सर पर थप्पड़ मारा, जिसमें गुस्से से ज़्यादा मोहब्बत थी। जाओ बेटा, अपनी पैकिंग करो। इमरोज साहब ने रईसा के सर पर शफकत से हाथ रखा। रईसा खामोशी से उठी, चादर को थोड़ा संभाला और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। श्याम की नज़रें उसके पीछे लपकी। उसने फातिमा को देखा, जो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए नज़रों से इशारा कर रही थी कि जाओ उसके पास। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे। श्याम ने मौका जाना और आहिस्ता से रईसा के पीछे निकल गया। रईसा बेड के किनारे बैठी बैग में कपड़े तह तह रख रही थी। उसके चेहरे पर थकन भी थी और एक खामोश जिद भी। वो श्याम के साथ जाने को तैयार नहीं थी, मगर हफ्सा बेगम के नर्म लहजे और माँ जैसी अपनायत ने उसे इनकार से रोक दिया था। बैग का जिप खींचने ही लगी थी कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और श्याम अंदर आ गया। रईसा, तुम अब भी नाराज़ हो। श्याम बैग साइड पर करते हुए उसके करीब आया। रईसा ने बैग फिर से थाम लिया। नाराज़ी कब हुई थी? उसकी आवाज़ में तल्खी नहीं थी, बस एक खफा सा सच छुपा था। रईसा, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। रियली सॉरी। वो तुम्हारा पास्ट था, ये बात मैं समझ गया हूँ। श्याम आहिस्तगी से उसे बेड पर बैठाते खुद जानों के बल उसके कदमों में बैठ गया। आंखों में शर्मिंदगी और लहजे में माफ़ी की गुहार थी। लेकिन तुमने निकाला था श्याम। तुम जानते थे मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, फिर भी। रईसा ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिए। दिल की चोट आंखों तक आ चुकी थी। श्याम ने नरमी से उसके आंसू पोंछे। बस एक बार प्लीज़, एक बार माफ़ कर दो हमारे बच्चों के लिए। रईसा ने नज़रें चुराईं। बच्चों का नाम मत लो। उसकी आवाज़ लरज़ गई। क्यों? श्याम हैरत से बोला। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। रईसा का लहजा हुक्म सा लगा, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। श्याम ने आहिस्तगी से उसके हाथ दोबारा थाम लिए। ये बच्चे भी तुम्हारे और उनका बाप भी सिर्फ तुम्हारा है। ये ज़्यादा फ्री मत हो। अभी राज़ी नहीं हुई। रईसा उसकी हरकत पर झुंझला कर बोली, मगर आंखों में खफगी कम और नरमी ज़्यादा थी। श्याम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तो मान जाओ यार, मैं मज़ीद घुटनों के बल नहीं बैठ सकता। प्लीज़ मान जाओ, मेरी होने वाले बच्चों की माँ। रईसा हंसी रोक ना पाई, मगर फ़ौरन संभली। वादा करो आइंदा कभी ऐसा सलूक नहीं करोगे। ना गुस्सा, ना धुतकार, ना घर से निकालना। मेरी मजाल, अगर दोबारा ऐसी हरकत की। श्याम उसके साथ बेड पर बैठता हुआ बोला, आई एम सॉरी अगेन। उसने धीरे से रईसा का गाल चूम लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रईसा। अब उसके बालों पर नरमी से लब रख रहा था। रईसा ने उसका हाथ थामा। अच्छा बस, अब मुझे रुलाओगे क्या? डॉक्टर ने मना किया है। कहीं उस डॉक्टर का नाम रईसा श्याम मीर तो नहीं? श्याम ने शरारती अंदाज में कहा। नाम तो यही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? रईसा ने आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। श्याम ने उसके गिर्द बाहें फैला दी। मुझे क्या प्रॉब्लम, रईसा उर्फ शहजादी। वो कमरे में उन दोनों के कहे कहे गूंजने लगे, जैसे मौसम बदल रहा हो, जैसे दिलों में बर्फ़ पिघल चुकी हो। इस्माइल हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में सामने बैठे याह्या साहब नज़र आए। सर, मैंने हर मुमकिन जगह तलाश की है, लेकिन रोमा बीवी का कहीं सुराग नहीं मिला। इस्माइल ने मुअद्दबाना लहजे में नज़रें झुकाते हुए कहा। याह्या साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आ गए। उनके चेहरे पर ज़ब्त की एक कड़ी लकीरें थी। उस जगह क्यों तलाश नहीं किया जहाँ छोड़ कर आए थे? ये अल्फाज गूंज बनकर फिज़ा में फैल गए। इस्माइल का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी टांगों में लर्ज़िश आने लगी।
موسا غصے سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اسماعیل کے گال پر مارا۔ اگر کسی کو بھگانا ہو تو کم از کم کیمرے تو بند کر لیتے۔ اسماعیل لڑکھڑاتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اوپر کمرے میں بستر پر زخموں سے چور مرا نیچے سے آتی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھے۔ اس کے پیروں میں چپل تک نہ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر پہنچی۔ اسماعیل، وہ کراہتے ہوئے اسماعیل کو دیکھ کر چیخی، لے آ گئی آپ کی ایک اور عاشق بیٹی۔ موسیٰ نے طنزیہ کہا لگایا اور دوبارہ اسماعیل کو مکے مارنے لگا۔ لالا چھوڑ دے اسے، میں کہہ رہی ہوں وہ بے قصور ہے۔ مرحا بدحواسی سے چیخ رہی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ موسیٰ نے وحشت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی اور بڑھایا تو تمہارے عاشق کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسماعیل کو بالوں سے پکڑ کر پھر زمین پر دے مارا۔ مت مارے اسے، میری غلطی ہے، میں نے آپ ہی کو بھگایا۔ مجھے مارے، اس کو چھوڑے، خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا۔ مرحا اس کے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں اسے ہاتھ بھی لگاؤں گا اور وقت آنے پر گولی بھی ماروں گا۔ موسیٰ نے گھرا کر مرحا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ گارڈز، اسے لے جاؤ، جب تک سچ نہ اگل دے مارو، جتنا مار سکتے ہو۔ موسیٰ کی آواز گونجی اور محافظ لپک کر اسماعیل کو گھسیٹنے لگے۔ نہیں، ہاتھ مت لگانا، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو میرے اسماعیل کو، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ کیوں مار رہے ہو اس کو جاہلوں؟ مر جاؤ تم سب، چھوڑو اسے۔ مرحا پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ آواز روحان سی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ چٹاخ! وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ شرم آتی ہے تمہیں، منحوس لڑکی؟ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ موسیٰ نے اسے بازو سے جھٹک کر پیچھے پھینکا۔ اتنی بے غیرتی، ایک نوکر کے لیے تڑپ رہی ہو؟ کاش تم دونوں بہنیں پیدا ہوتے مر جاتی۔ مرحا زمین پر گری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں طوفان تھا۔ یحییٰ صاحب ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ سورج کی روشنی اب قدرے مدھم ہو چکی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سنہری کرنیں اندر آ کر فرش پر رینگ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں شہسوار اپنے ہینڈ کیری میں کپڑے رکھ رہا تھا اور دوسری طرف سمن ہاتھ باندھے ناگواری سے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے آئے ہوئے 2 دن ہوئے اور تم جا رہے ہو؟ سمن کا لہجہ روٹھے بچے جیسا تھا مگر آنکھوں میں تجسس چھپا ہوا تھا۔ شہسوار نے بنا اسے دیکھے جواب دیا، اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ تم اپنے گھر واپس نہیں جا رہی۔ زیادہ فضول بننے کی ضرورت نہیں۔ سمن غصے سے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئے خود کپڑے تہہ کرنے لگی۔ بتاؤ تو صحیح، جا کہاں رہے ہو اتنی ایمرجنسی میں؟ لاہور جا رہا ہوں، شہسوار نے ایک قمیض اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ہلکے سے کہا۔ لاہور؟ اب وہاں کیا ہے تمہارا؟ سمن کا ہاتھ رک گیا۔ نگاہوں میں حیرت اور لہجے میں شکوک تھے۔ شہسوار نے ایک تلخ مگر نرم مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ لاہور میں ہی تو سب ہے۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو؟ بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ سمن کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار ہمدردی کا عکس آیا۔ بھولنا آسان تھوڑی ہوتا ہے سمن میڈم۔ شہسوار نے گلا کھنکارا جیسے ایک پھانس تھی جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سمن نے اس کے ہینڈ کیری کی زپ بند کی۔ آخری بار جا رہے ہو؟ شہسوار نے بے ساختہ ایک دھیما کہا لگایا۔ ہاں، یہ آخری بار ہی ہے۔ جانے کا مقصد؟ سمن نے بیگ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ دیدار یار۔ شہسوار کے لبوں سے نکلنے والے یہ لفظ کمرے کی فضا میں ٹھہر گیا۔ سمن نے اس کے جواب پر گہری نگاہ ڈالی جیسے سب کچھ سمجھ چکا ہو۔ دعا کروں گی تمہارے لیے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا مگر اس کے اندر ہلکی سی سنجیدگی چھپی تھی۔ کیا؟ شہسوار نے اس کے انداز میں پلٹ کر پوچھا۔ یہی کہ تمہارا یہ لاہور کا آخری سفر ہو۔ سمن نے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ بد دعا تو نہ دو کم از کم، شہسوار چڑھ کر بولا، لیکن ہنسی چہرے سے چھلک پڑی۔ سمن نے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا دیے۔ اللہ کرے اس بار محبوب مل جائے، ورنہ سنا ہے لاہور بے وفاؤں کا شہر ہے۔ شہسوار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور سمن اس کے پیچھے چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔
जैसे दिल में कोई सवाल बाकी रह गया हो। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। फरदान तेजी से कमरे से निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी, जैसे कोई फैसला कर लिया हो जिसे अब टाला नहीं जा सकता। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि पीछे से रोमा की आवाज़ ने उसे रोक लिया। फरदान, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? रोमा ने चादर ओढ़ते हुए फिक्रमंदी से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में उलझन थी और आवाज़ में घबराहट। फरदान पलटा। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी का इम्तिजाज था। मुझे फातिमा को कॉल करनी है रोमा, उसे सब सच बताना है। रोमा ने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर फरदान की आंखों में झांका। लेकिन आप उसे बताएंगे कैसे? फ़ोन तो पीसीओ से करूँगा, फरदान ने बेसब्री से जवाब दिया, जैसे अब एक लम्हे भी मज़ीद नहीं रुका जा सकता। उसके कदम तेज़ हो चुके थे। वो दरवाजे की तरफ लपका। रोमा ने बेख्तियार पीछे होकर दरवाज़ा खोला और फिर फ़ौरन उसके जाते ही बंद कर दिया, जैसे बाहर की हवा भी अब खतरा लग रही हो। वह दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अंधेरे में खड़ी रोमा की आंखें दरवाजे के दर से बाहर झांक रही थी। शहर की गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। सड़क के किनारे जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स, हवाओं में घुलती नमी और सड़क पर सन्नाटा। हर चीज़ किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। फरदान तेज कदमों से चलता हुआ पीसीओ के कोने वाले छोटे से कैबिन तक पहुंचा। अंदर जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी थी जो बार बार हल्की हो रही थी, जैसे उसमें भी फरदान जैसा अस्तराब हो। कौन सा नंबर? कैबिन में बैठा आदमी जमाई लेते हुए बोला। ये लगा दे। फरदान ने कपकपाते हाथों से एक कागज़ आगे बढ़ाया जिस पर फातिमा का नंबर दर्ज था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। दिल की धड़कन जैसे हर बेल के साथ बढ़ रही थी। बिल आखिर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। फातिमा की आवाज़ नींद आलूद मगर हैरत भरी थी। फातिमा। फरदान की आवाज़ गले में अटक गई, जैसे हलक खुश्क हो गया हो। फरदान, इतनी रात गए, खैरियत? तुम ठीक हो ना? एक लम्हे को खामोशी छा गई। पीसीओ की दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक अब फरदान के कानों में गोया चीख रही थी। फातिमा, मैं तुम्हें एक सच बताने लगा हूँ, तहम्मुल से सुनना मेरी बात। फरदान इर्द गिर्द देखते हुए बोला। क्या मतलब? कैसा सच? चाचू का कत्ल वो मूसा ने करवाया है। फ़ोन के उस पार सन्नाटा छा गया। क्या? क्या कहा तुमने? फातिमा की आवाज़ कँपकँपाने लगी। मुझे रोमा ने बताया है, तुमसे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया था। वो तुम्हें धोखा दे रहा है फातिमा। फातिमा के हाथों से फ़ोन लरज़ने लगा। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं झूठ बोलता, लेकिन ये सच है। मेरे चाचू का खून उसी मूसा के हाथों हुआ है और अब तुम भी उसके साए में जी रही हो। फातिमा के लबों से आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ निकलने लगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच अक्सर ऐसे ही होता है, कड़वा, तकलीफ़दा, मगर इनकार से हकीकत बदलती नहीं। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने खुद को खतरे में डाला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दूसरी तरफ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। शहसवार फ्लाइट की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीले आसमान पर बादलों के टुकड़े किसी ख्वाब की मानिंद बह रहे थे, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। सिर्फ एक तूफान था जिसका मरकज़ सिर्फ फातिमा थी। डेरा गाजी खान की ज़मीन उसके कदमों से दूर हो चुकी थी और लाहौर करीब आ रहा था। वही शहर जिसने पहले उसे सियासतदान बनाया और फिर उसी शहर ने उसे आशिक की खाक में बदल दिया। कैबिन के स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज़ गूंजी। लैंडिंग इन लाहौर। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। शहसवार ने आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कनें गोया हर लम्हा चीख रही थी। क्या वो मिलेगी? क्या वो सुनेगी? क्या वो देखेगी? लाहौर। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसकी उंगलियां सीट के बाजू पर बेख्तियार लरजने लगी। एक तरफ अना, दूसरी तरफ मोहब्बत। लेकिन शहसवार ने मोहब्बत को चुन लिया था। वो मेरी शक्ल नहीं देखेगी, जानता हूँ। उसने आहिस्ता से खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से हम कलामी की। लेकिन उसे देखना मेरे लिए ज़रूरी है। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुकने लगा। शहसवार की सांसें रुकने लगी। बेवफाओं के शहर में एक बार फिर आशिक ने कदम रख दिए थे। फरदान की कॉल के बाद वो काफ़ी देर तक साकित बैठी रही। मोबाइल हाथ से कब फिसला,
زمین پر کب گرا اسے ہوش نہیں تھا، لیکن سینے میں جیسے کسی نے کوئی برچی مار دی ہو۔ درد لمحہ بلمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا سینہ رب کرنا شروع کیا، جیسے درد کو ہاتھ سے دبا کر روک لینا چاہتی ہو۔ سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ وہ کھڑی ہوئی چادر کندھوں سے اتار کر پھینک دی اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ آنکھیں سرخ ہونے لگی، دل میں ایک ایک خیال گردش کرنے لگا۔ اگر واقعی موسیٰ میرے بابا کا قاتل ہے تو… جیسے یہ سوچنے پورا زور پکڑا، اس کا دل بیٹھنے لگا، پاؤں لڑکھڑائے، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اسے رئیسہ کی آواز یاد آنے لگی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیوں زندگی گزارے گی؟ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے پوری دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ رئیسہ جانتی تھی، موسیٰ کو سب پتہ تھا، اور وہ تو ان سب کے بیچ میں فقط ایک تماشا بن گئی تھی۔ پھر جیسے اندر کوئی بند دروازہ ٹوٹا ہو، اس کے ضبط کی دیوار گر گئی۔ وہ چیخ اٹھی، بابا، بابا، آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں نا بابا، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا۔ وہ زور زور سے سینہ کوٹتی، دیوار سے سر ٹکراتی، فرش پر گر کر بلک بلک رونے لگی۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ دل کا درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فاطمہ، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ الیشوا بیگم ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئیں، لیکن جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ان کے تصور سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے، آنکھیں خون کی طرح سرخ، منہ سے جھاگ اور تھوک نکلتا، ہچکیوں میں بولتی جا رہی تھی، ماما، میرے بابا، اس نے مار دیا انہیں۔ ماما، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ماما کچھ کریں۔ الیشوا بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ گھبرا گئی، اسے تھامنے دوڑی، مگر فاطمہ خود کو جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ ماما، سانس نہیں آ رہا، میں مر جاؤں گی ماما، مجھے مار دیا ان لوگوں نے۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا دکھ، اس کی چیخیں، اس کی بے بسی پورے گھر کو لرزا گئی تھی۔ بیسمنٹ کی فضا میں خون اور پسینے کی ملی جلی بو رچ بس چکی تھی۔ ہلکی ہلکی زرد روشنی ٹوٹے بلب سے ٹمٹما رہی تھی۔ دیواروں پر نمی سے دھبے تھے اور فرش پر خون کے چھین تھے۔ درمیان میں کرسی پر بندھا اسماعیل ہانپ رہا تھا، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، ہاتھوں کی رگیں سوج گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ پاس ہی 2 گارڈز کھڑے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے اور بدن پر پسینے کی تہہ۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر اسماعیل کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بول، کہاں ہے روما بی بی؟ اسماعیل نے ہونٹ بھینچ لی، جیسے اپنی سانسیں تک قید کر رکھی ہو۔ دروازے کی چرچراہٹ ہوئی اور موسیٰ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک بے رحم حاکم کی گونج تھی۔ کچھ بولا کہ نہیں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ گارڈ نے آگے ہو کر کہا، نہیں سر، یہ چپ ہے، پتھر کی طرح۔ موسیٰ کا چہرہ تن گیا۔ اس نے ایک بھر اسماعیل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نفرت بھری چپ تھی۔ مارو، جب تک بولتا نہیں ہڈیاں توڑ دو اس کی۔ یہ کہہ کر موسیٰ مڑا اور بیسمنٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے گونجتی آواز تھی، ڈنڈے کی ضرب اور اسماعیل کی دبی ہوئی سسکیاں۔ اوپر حویلی میں سورج کی پہلی روشنی در و دیوار پر پڑ رہی تھی۔ موسیٰ جیسے ہی لابی کراس کرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فاطمہ بیگم کا نام چمک رہا تھا۔ موسیٰ چونکا، اب تک فاطمہ نے اسے کبھی صبح سویرے فون نہیں کیا تھا۔ آج صبح بیوی کی کال، خیریت تو ہے؟ وہ بولا اور کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے آواز آئی، لیکن وہ فاطمہ کی یوزول کانفیڈنٹ ٹون نہیں تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی، روندھی ہوئی اور اندر سے زخمی لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے ابھی ملنا ہے، فوراً۔ موسیٰ حیران ہوا۔ فاطمہ، سب ٹھیک ہے؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ اسے لگا جیسے وہ رو رہی ہے یا رو چکی ہے۔ سانسیں بھاری تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، وہاں آ جائیں۔ فون کٹ چکا تھا۔ موسیٰ کے چہرے پر تفکر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فون کی اسکرین پر نظریں جما دی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کیسا لہجہ تھا اس کا؟ ویسے تو کبھی نہیں بولتی تھی، کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے لمحے بھر کے لیے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ فاطمہ نے جیسے ہی موسیٰ کو کال کر کے فون بند کیا،
उसका हाथ कांप रहा था, आंखें सूजी हुई, मगर अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। अलिशा बेगम नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उनके चेहरे पर फिक्र की लकीर वाज़ेह थी। फातिमा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहाँ जा रही हो? अलिशा बेगम ने कुर्सी से उठते हुए उसका हाथ थाम लिया। फातिमा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्ज़ों से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मामा, मुझे रईसा से मिलना है, अभी आ जाऊंगी। वो बस इतना कहकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अलिशा बेगम हैरत से उसके पीछे देखती रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा को क्या हुआ है, ये कैसा दर्द है जो उसकी सांसों में उतरा जा रहा है। फातिमा का दिल बिखरा हुआ था, जैसे उसकी छाती में खून की जगह शीशे भर दिए गए हों। हर कदम पर दर्द छन छन कर बाहर आ रहा था। वो सड़क पर चलती जा रही थी, कपड़े बिखरे, आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द। उसे खुद का होश नहीं था, जैसे वक्त और जगह की पहचान खो बैठी हो। अरे फातिमा, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? एक मोहल्ले की खातून उसको इस हाल में देख कर लपकी। फातिमा ने उनकी तरफ देखा, लब हिले, आवाज़ निकली, ठीक हूँ, और ढीठ भी। बस इतना कहकर वो तेज़ कदमों से ताया के घर दाखिल हो गई। दरवाजे की आवाज़ पर रईसा, जो लाउंज में सोफे पर बैठी मोबाइल पर कुछ देख रही थी, चौंक गई। उसने जैसे ही फातिमा को देखा, घबराकर उसकी तरफ बढ़ी। फातिमा, तुम? सब खैरियत है? रईसा की आवाज़ में परेशानी थी। फातिमा के कदम रुक गए। उसने झटके से रईसा का बाजू पकड़ लिया। तुमने धोखा क्यों दिया मुझे? उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, जख्मी होने की तपिश भी थी। रईसा एक लम्हे के लिए साकित रह गई। फातिमा, क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। ठीक रहने दिया है तुम लोगों ने? तुम लोग कौन होते हो मेरी किस्मत का फैसला करने वाले? क्या किया मैंने? क्या गलती की थी? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? वो चीख रही थी, आंखों से आंसू जारी थे, मगर लबों से निकलने वाली हर बात सच्चाई से भरी थी। रईसा उसके हाथ पकड़ने लगी। फातिमा, कुछ तो बताओ, क्या है? फातिमा की आवाज़ टूटने लगी। मूसा, वो कातिल है मेरे बाबा का। तुम जानती थी, तुम जानती थी सब कुछ, फिर छुपाया। मेरे शौहर ने मारा मेरे बाबा को। क्यों छुपाया रईसा? क्यों किया ये सब? ये कहते कहते वो धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई और रोते रोते अपने बाजू सीने पर मारने लगी। रईसा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसकी सांस जैसे थम गई हो। सच्चाई जब किसी और की ज़बान से सुनी जाती है तो अपना झूठ ज़मीन में दफन होता साफ नज़र आता है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें रईसा, कभी नहीं। फातिमा फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों का बोझ आज दिल से निकलकर आंखों के रास्ते बह रहा हो। फरदान मुसलसल कमरे में टहल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसे चुभने लगी थी। कमरे की फिजा जैसे उसके दिल की बेचैनी से भर गई हो। खिड़की के शीशे से बाहर धुंधला सा आसमान नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर का मौसम कहीं ज़्यादा धुंध आलूद था। फरदान, हम वापस चले जाएंगे, बस एक बार इलेक्शन शुरू हो जाए, बाबर और मूसा मसरूफ़ हो जाएंगे। रमा की आवाज़ में तसल्ली थी, मगर उसकी आंखों में खुद बेबसी छुपी थी। वो जानती थी कि फरदान घुटन में है, मगर मसले का कोई आसान हल मौजूद ना था। बस दुआ करो कि सब जल्दी शुरू हो, क्योंकि मुझे वापस जाना है रोमा, हर हाल में। फरदान के लहजे में जैसे धुआं भरा हो। सांस लेना भी बोझ बन चुका था, जैसे दीवारें उस पर तंग होती जा रही थी। हम चले जाएंगे, प्लीज़ आप टेंशन मत लें, मैं पानी लेकर आती हूँ, रोमा ने नरमी से कहा और दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ गई। उसका दुपट्टा पीछे से लड़खड़ाया और उसके कदमों में अस्तराब छुपा हुआ था। फरदान थके हुए कदमों से सोफे पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे एक लम्हे के लिए खुद को इस दुनिया से काट देना चाहता हो। कमरे की खामोशी गूंजने लगी और उसके दिल की धड़कनें उसे ही सुनाई देने लगी। वो सिर्फ वापस जाना चाहता था, लाहौर, जहाँ उसका सुकून दफन था। तो आज के लिए बस इतना ही। नावल को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आगे हम नावल को कंटिन्यू करेंगे। और जब मैं आज का एपिसोड रीड कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आई। मूसा वो कैरेक्टर है जिसका बर्ताव, जिसका बिहेवियर सारी के सारी लड़कियों के साथ बहुत बुरा है, चाहे वो मरहा हो, चाहे वो रोमा हो, चाहे वो फातिमा हो या फिर रईसा हो।
पहले जब मरहा और मूसा का सीन आया था, जहाँ वो मूसा को धमकाने आए थे कि वो रोमा के साथ अच्छा बिहेवियर करे, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मूसा उसे छोटी बहनों की तरह तो प्यार करता होगा। भले वो रोमा को पसंद नहीं करता क्योंकि ज़बरदस्ती उस पर थोपी जा रही है, लेकिन ना जी ना, वो तो किसी पर तरस नहीं खाता। चाहे वो रईसा हो, चाहे वो फ़ातिमा हो, चाहे वो रोमा हो या मरहा हो, यहाँ तक कि वो मरहा की मम्मी को भी पसंद नहीं करता। उसकी अपनी ही कुछ बैक स्टोरी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि कोई तो वजह है जो वो इतना चिढ़ता है सबसे, या इस तरह का है वो। लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ शहसवार है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है, चाहे वो अपनी बहन के साथ हो या फिर अपनी मम्मी के साथ हो या वो फ़ातिमा के साथ हो। तो हाँ, और जहाँ तक बात रही शहसवार की बहन समन की, पहले मुझे कन्फ्यूजन हुई कि उसका नाम क्या है, समन या सुमन, लेकिन नहीं, सुमन तो सीन से होता है, तो उसका नाम समन ही है। समन कैसा नाम हुआ, मैंने पहली बार सुना है ये नाम तो। और बस देखते हैं, बेचारे फरदान ने बहुत बड़ा ख़तरा सच में मोल लिया है फ़ातिमा को कॉल करके। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉल के ज़रिए मूसा पहुंच जाएगा फरदान के पास और फिर बड़ी वाली ट्रेजेडी होनी है। या फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।